I hope you all are safe and are doing great. And welcome back to my channel Young Tutor. और आज क्योंकि most of us have completed our term 1 of our schools, of our class 9th, of our grade 9th. So आज मैं लेके आ रही हूँ chapter number 1 of term 2 of chemistry, which is atoms and molecules. Now I would try to be consistent in the term 2 कि मैं आप सबके लिए PPTs बना पाऊँ and to present some important pointers, important lessons for you in this term. ऐसे चैप्टर्स भी मैं लाऊंगी विच हैज़ बिन एक्सक्लूडेड बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ competitive exams there are a few people who are giving some certain external exams for them. The excluded chapters are also included और वो chapters अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं it is very much important for our senior classes. So let's start off with the first chapter of chemistry which says atoms and molecules. इस chapter में हम atoms और molecules के बारे में discuss करेंगे कि atoms क्या होते हैं और molecules क्या होते हैं. So from before starting this, let me just start off with the definition of matter. What is matter? Matter is the amount of mass stored inside a body. ठीक है. Matter is the mass of an object. आप इस simple language में भी इसको कह सकते हैं. So हर एक ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो आप अपने अराउंड देख सकते हो इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ atoms. So atoms are the basic fundamental structure of anything, any non-living thing you can say. ठीक है. Moving on, so here we are getting to see a more better definition of atoms. What are atoms? Atoms are the smallest indivisible particles in any element or a pure substance. एक एटम ऐसी चीज़ है जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो. ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर टूट नहीं सकता है. All things around us are made up of tiny indivisible particles called as atoms. हमारे आप just look around the room, look around wherever you are sitting. Each and everything which you can see is made up of atoms. Atoms से बना है एक ऐसा पार्ट जो आपको माइक्रोस्कोप में भी बहुत मुश्किल से विजिबल रहेगा. इट इज़ टू स्मॉल. सो ज़रा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमारे ये एटम जी के बारे में, दैट हाउ एटम केम टू आवर वर्ल्ड. सो कन्नड़ महर्षि वॉज अ फिलोसोफर ऑफ इंडिया who in the 500 BC postulated मतलब कि उन्होंने बोला, स्टेट किया कि अगर हम मैटर को तोड़ते रहें, if we keep on dividing matter, we will obtain a particle which can't be further divided, which is known as परमाणु. So उन्होंने क्या बोला कि 500 BC में कन्नड़ महर्षि जी ने बोला कि एक ऐसी स्टेट आएगी, या आप कह सकते हो कि जब हम एक मैटर को तोड़ते रहते हैं एक ऐसा अल्टीमेटली पार्टिकल आपको मिलेगा जो फर्दर आप नहीं तोड़ सकते हो एंड उसको आप परमाणु कह रहे हो. देन वी कम टू Democritus and Leucippus suggested that if we keep on dividing matter, a stage will come when they can't be divided any further, and then he called those particles as atoms. Democritus और Leucippus ने ये बोला कि एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप मैटर को जितना मर्जी तोड़ो, एक स्टेज आएगी कि मैटर ऐसी स्टेज पर आ जाएगा कि आप उसको और नहीं तोड़ सकते हो, और उस स्टेज में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं दोज आर नोन एज एटम्स. सो बेसिकली कन्नड़ महर्षि जी और ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने सेम ही चीज़ बोली थी, इट्स जस्ट दैट दे हैव चेंज द नेम्स विच इज़ परमाणु एंड एटम्स. Laws of chemical combination. So there are two main important laws when we are dealing with atoms in this chapter. Number 1 is conservation of mass and number 2 is law of constant proportion, composition or definite proportions. So first of all, let's start with law of conservation of mass. So what does law of conservation of mass states? It states that in a chemical reaction, the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the product
which is being taking place in the reaction. So let me tell you what is reactants and what is product. Reactants are always placed in the left hand side of the equation and product is always placed in the right hand side of the equation. जैसे I have 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen which forms H2O. इसने H2O फॉर्म कर दिया. So the substances which are present in the left side of the equation is known as LHS, is known as reactants, and which is present in the right side are known as the product. So जो mass होगा reactants का वो हमेशा mass आपके जो mass होगा reactants का वो हमेशा mass of the product के equal रहेगा. So here is a simple experiment which we have carried out, which is we have taken BaCl, barium chloride and copper sulfate solution और हमने उसको मिक्स कर दिया. So on seeing this हमने देखा कि total we had was 300.23 grams was the total mass of the reactants which was being taken place. Now after that we came to barium, then we received BaSO4, barium sulfide we received while precipitate in NaCl solution. So हमें क्या मिला, जब ये इन्होंने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, बेरियम क्लोराइड से हमें क्या मिला, BaSO4 मिला. भी याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड विद दिस दी इक्वेशन. और हमें सॉल्ट पार्टिकल्स मिले NaCl. So what we see or what we obtain from this is कि इधर we saw 300.23 grams था और इधर भी 300.23 grams ही रहा. ये हमें ध्यान रखना that it is tightly enclosed. इसको पूरा आपने बंद रखना कि अगर गैस भी है तो उसका भी आप कोई वेट उठा रहे हो. So from this what we can derive is that mass is neither created nor destroyed. ना ही mass को आप बना सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में. जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा दोनों जगह. ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑब्टेन. नेक्स्ट वी कम इज टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनाइट मास. अ प्योर केमिकल कंपाउंड always consists of some same elements combined together in a fixed definite proportion. कि जब एक कंपाउंड रहता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइंड रहेंगे. लाइक वी हैव H2O, so here we have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. I can't say कि water can be derived from 3 hydrogen oxygen and 3 hydrogen atoms and 1 oxygen atom और 2 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. उसकी क्योंकि रेशियो बाय मास पूरा चेंज हो जाएगा. H2O का जब आप पूरा आपको इट वुड बी गिवन वैसे मास क्या होता है उनका, बट जब आप इनको सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड मास पे आओगे सो वो सिंप्लीफाइड मास कम्स आउट टू बी 1:8. बट जब आप इसके प्रपोर्शंस ही चेंज कर रहे हो, जब आप इधर 2 ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके प्रपोर्शंस भी चेंज होंगे. व्हेन आई एम सेइंग H2O दिस इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, बट व्हेन आई एम सेइंग H2O2 जब मैं बना देती हूँ इसको, मैंने सपोज इसकी प्रपोर्शंस चेंज कर दी, H2O2 बना दिया, ऑब्वियसली इस रेशियो में भी डिफरेंस आएगा और ये वाटर नहीं कहलाएगा, अब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. सो दिस इज अ न्यू कंपाउंड विच इज बीइंग फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, विच इज एग्जिबिटिंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ वाटर. मूविंग ऑन, वी आर कमिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं, डाल्टन एक बंदा था, ये चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन डाल्टन ने क्या किया, इसको सारी चीज़ों को कंबाइन करके रख दिया. ओह ये क्या हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. जी हम इधर थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे. सो डाल्टन एक बंदा था, एक इंसान था, हमारे जैसा ही था, जाति प्रजाति था. उसने क्या किया कि ये सारी चीज़ें बेसिकली जो नीचे लॉज हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन इसने कंबाइन करके एक नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी.
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड. मैटर जो है, जो ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं उनका आप मैटर बोलते हो, वो एक बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना है जिसको आप एटम्स बोलते हो, विच कांट बी फर्दर डिवाइड, जिसको आप आगे जो है तोड़ नहीं सकते हो. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ना ही आप एटम्स को बना सकते हो, ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन. This line is very important. In a chemical reaction which furthermore goes up to law of conservation of mass. ये बताता है that mass is neither created nor destroyed. और mass किस चीज़ से बना है? molecules से, and molecules are further made up of atoms. Third बोलता है all atoms of a given element are identical in sizes, masses and chemical properties. Suppose I have an iron block here. मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, उसके अंदर सारे आयन एटम्स हैं. ठीक है, दिस इज एन आयरन ब्लॉक एंड इट इज हैविंग दीज आयन एटम्स इनसाइड इट. अब इसका ये पार्टिकल जो है और ये पार्टिकल जो है, इट इज गोइंग टू बी सेम इन साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस इज ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. और क्योंकि सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बने हैं, इनके साइज सेम रहेंगे, मास सेम रहेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी. Next is during a chemical combinations, atoms combine in simple numerical ratios. Atoms जो है वो simple numerical ratios में आते हैं, whole numbers में आते हैं. कभी भी आप उनको ये नहीं देखोगे कि 0.5 में है या कुछ है. कुछ exceptions होती हैं combining की, जैसे कुछ exceptions होती हैं, मैं बताती हूँ. Those are isotopes which is in chapter number 4. वो एक्सेप्शंस के लिए आप उनका एवरेज लेते हो, देन वी आर सेइंग दैट इज एन एक्सेप्शन ऑफ आइसोटोप्स. ड्रॉबैक्स क्या है इसकी? कि डाल्टन ने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम्स कांट बी फर्दर डिवाइडेड. ये लिखा है ना, एटम्स कांट बी फर्दर डिवाइडेड. लेकिन एटम के पास लेटर हमने क्या देखा कि एटम जो है वो और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. ये छोटा सा जो चीज़ जैसे सेल नहीं बना होता, इस सेल में इसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया, विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस. सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस. फिर बाहर दीज ऑर्बिटल थिंग्स विच यू कैन सी इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. इसको आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोलते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स. क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? इसके 3 सब पार्ट्स क्या हैं? ये तो एक एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. लेकिन अब जो डाल्टन ने बोला कि एटम और ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ नहीं जा सकता, अब उसके पार्ट्स की ज़रा बात कर लेते हैं. उसके पार्ट्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो जो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके इस छोटे से न्यूक्लियस में रहते हैं, विच इज़ योर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन योर न्यूक्लियस, वेर एज द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल. ये जो आपकी शेल जो आप दिख रहे हो, इसको आप शेल भी बोलते हो. ये आपका जो शेल आपको दिख रहा है या आपको जो ऑर्बिट दिख रहा है, इसके अंदर इसके ऊपर आपके घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज इज, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं. या तो इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग होता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच इज़ लिटिल हायर क्लास. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो गई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्नड इज कि न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल इधर से ही दिख रहा है, दैट मीन्स कि दे आर नॉट कैरिंग एनी टाइप ऑफ चार्जेस. ये न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई साइन शो नहीं करते. वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. और इन एन एटम द नंबर ऑफ protons is always equal to the number of electrons. ठीक है,
ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. देन टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, कि एक एटम क्या प्रॉपर्टीज शो करता है. पहला तो कि एटम बहुत ज़्यादा छोटा है साइज में, उसका रेडियस इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर्स. दीज मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये शायद और शायद फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं. जनरली दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग इन फ्री स्टेट, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. बट जो नोबल गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन हो गया, नहीं हीलियम, लिथियम, हीलियम हो गया, देन आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ऐसी जो नोबल गैसेस हैं, whereas these all can exist in free state, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स. या सिम्बल्स देख रहे हो इधर, ऐसे आपने सिम्बल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. और आप इसको जैसे अगर आयरन है, ठीक है, आयरन है, ये मैंने तो लिख दिया आयरन, आप आयरन को ऐसे सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Fe, या फिर मैंने इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया. दोनों आयरन ही बोल रहे हैं, ठीक है. और ये वाले जो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं, दीज आर जनरली इन लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज, ठीक है. लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये डेड लैंग्वेजेस है और इसके मतलब जो है कभी चेंज नहीं होते. लेकिन इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं एज टाइम पास. और किसने इस नाम को सेट किया, इट इज़ IUPAC, which is you can search the full form. वैसे this is little out of course, but इसका नाम जो है ये IUPAC रखता है नाम, ठीक है. एंड फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. फर्दरमोर वी कैन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इसके बारे में मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, केमिकल और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. So till then, I'll see you in my next lecture, and thank you all for visiting my channel. Don't forget to like, share and subscribe to this video.